Good morning, my dear children. Happy New Year to all of you. Class 3rd. Today is your online class. Subject computer. I will teach you computer today, chapter 8. Children, hope you all are fine and fresh today. Let's begin with a new chapter, chapter 8, and a very interesting topic, that is internet and its applications. Now today we are going to study about internet. Through internet you all are studying, so this is your online class, and how it is going on? Because of internet. Now I will tell you what is internet first. Let's read the introduction and then I will explain you. Before we start, today is 1st of Jan, as you all know, 2021, and day is Friday. Your thought of the day is creativity is seeing the same thing but thinking differently. So children, today we are going to cover some important topics related to internet. First I will tell you what is internet, that is introduction to internet, getting on the text, uses of internet, web browsers, and search engines, emails, internet chat sessions, security from internet viruses. Now we are going to cover the half chapter today. Let's begin. What is an internet? Now first you have to understand what is network. Okay, network, if you talk about network, what is it? The internet is a massive body of networks or a networking infrastructure. Internet is a collection of millions of computers and computing devices. Now we are talking about internet. First, before we move on to the internet word, first we have to understand what is network. When one or more than one computers are connected through a network to communicate from one place to another, or you can say when you're giving the data from one place or one computer to other computers. It is for communication and transfer of messages in the whole world. आप कह सकते हैं कि जब एक से ज़्यादा कंप्यूटर्स कम्युनिकेशन ट्रांसफ़र करने के लिए कनेक्ट होते हैं, उस कनेक्शन को हम नेटवर्क कह सकते हैं। जब कंप्यूटर्स एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं वायर्स के थ्रू या केबल्स के थ्रू, उस केबल के जाल को हम नेटवर्क कह सकते हैं। और नेटवर्क बहुत सारे कंप्यूटर्स का होता है, तो ये किस लिए होता है? आप कह सकते हैं सूचनाओं का आदान प्रदान करने के लिए हम इंटरनेट का यूज़ करते हैं। इस वर्ल्ड में आप किसी भी कंट्री से रिलेटेड या किसी भी कंट्री में आप कहीं भी किसी कोने में हो और आपको किसी से बात करनी हो, तो आप नेट यानी इंटरनेट का यूज़ कर सकते हैं और आसानी से एक दूसरे से मैसेज के थ्रू कम्युनिकेट कर सकते हैं। सो दिस इज़ कॉल्ड internet. Now computers and computing devices that are all connected using wires and wireless technologies. तो नेटवर्क जो है वो वायरलेस भी हो सकता है और वायर्स के थ्रू भी हो सकता है with different topologies like star, bus and ring or mesh. Internet basically operates on TCP/IP protocols. The internet is a huge ocean of information of resources and services. आपने देखा होगा कि आपके कंप्यूटर में नेट या मोबाइल फ़ोन में नेट कनेक्शन रहता है, तो उसमें आप कई तरीके के इंफॉर्मेशन उसमें देख सकते हैं, किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो। तो वो जो है इंटरनेट है इंफॉर्मेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड सर्विसेज. With the help of internet, a user can view results of examination, access bank accounts and view न्यूज़, स्पोर्ट्स एक्सेट्रा. इंटरनेट के थ्रू आप क्या कर सकते हैं? आप बहुत कुछ कर सकते हैं. आप अपने एग्ज़ाम्स के रिज़ल्ट्स देख सकते हैं, बैंक ट्रांसैक्शंस
आप अपने बैंक अकाउंट के ट्रांजैक्शंस देख सकते हैं, आप न्यूज़ देख सकते हैं, स्पोर्ट्स देख सकते हैं, एक्सेट्रा. FTP allows the user to download, upload file across multiple sites. So children, FTP allows the users to download, upload. FTP के थ्रू आप अपने नेट के कंप्यूटर में डाउनलोड कर सकते हैं, फाइल्स को अपलोड कर सकते हैं, सेंड भी कर सकते हैं, ये बहुत सारे मल्टीपल साइट्स पे. वेरियस वेब ब्राउजर्स प्रोवाइड फैसिलिटीज़ टू सर्च ऑन अ स्पेसिफिक टॉपिक, हैव ईमेल अकाउंट, लॉग्स एक्सेट्रा. वेरियस वेब ब्राउजर्स प्रोवाइड, वेब ब्राउजर्स में आप ईमेल्स के थ्रू मैसेजेस सेंड कर सकते हैं और चैटिंग कर सकते हैं. हाँ, और स्पेसिफिक टॉपिक पे आप रिसर्च कर सकते हैं और ईमेल्स के थ्रू आप मैसेजेस भेज सकते हैं, और उसके लिए आपको एक मेल अकाउंट होना चाहिए आपके नेट कनेक्शन में. इंटरनेट सिक्योरिटी कैन बी प्रोवाइडेड बाय फायरवॉल एंड एंटीवायरस सॉफ्टवेयर. इंटरनेट सिक्योर हो सकता है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर उसमें हम रिप्लेस कर सकते हैं, और फायरवॉल्स भी. वी हैव सीन दैट द इंटरनेट इज़ यूजिंग इन मैनी वेज. लेट अस सी व्हाट डू वी नीड टू गेट एन इंटरनेट कनेक्शन. आपको इंटरनेट कनेक्शन को प्राप्त करने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत होगी, आइए इसको देखते हैं नेक्स्ट पेज में, पेज नंबर 78. सो चिल्ड्रेन, फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड अ कंप्यूटर PC, or then second you need a modem, web browser, telephone line, internet services, service provider, ISP. इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर क्या है? ISP. ये ऐसा डिवाइस है जिसके थ्रू आप अपने फ़ोन में कई सारे प्लान्स देख सकते हैं, उस हिसाब से आप अपने नेट को कनेक्ट करवा सकते हैं. Getting on the text. As first we have to connect our computers to the internet using our account and telephone line. हम अपने कंप्यूटर को एक नेट कनेक्शन से कनेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि हम अपने टेलीफोन लाइन से भी कनेक्ट करवा सकते हैं. इसमें BSNL है और भी कई सारे प्लान्स हैं. दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड लॉगिंग ऑन. व्हेन वी गेट एन अकाउंट, we get a name called a username and with a password which is personal to us. जब हम लॉगिन करते हैं तो हम एक अकाउंट से गुजरते हैं और उसमें हम अपना नेम और पासवर्ड हम प्लेस कर सकते हैं. वी यूज़ दिस व्हेन वी कनेक्ट टू द इंटरनेट. जब हम नेट से कनेक्ट होते हैं तब हम इसका यूज़ करते हैं. द नेट आइकॉन इज़ लोकेटेड इन डायल-अप नेटवर्किंग in my computers. When we click it, we see a pop-up windows where we write our username and password to connect. The net icon is called Internet Explorer. जब हम लॉगिन करते हैं और अपना नाम और पासवर्ड देते हैं तो वहाँ पर हमें एक आइकॉन दिखाई देगा, और वो आइकॉन क्या होता है? नेट का नेट से रिलेटेड होता है, और वो फ्लैश होता रहेगा आपके विंडोज़ पे, और उसको कहा जाता है इंटरनेट एक्सप्लोरर. द लोकेशन और पेजेस वेयर द इंफॉर्मेशन इज़ सेव्ड ऑन नेट आर कॉल्ड वेब पेजेस और वेबसाइट्स. लोकेशन जो है और पेजेस जो इंफॉर्मेशन सेव करता है उसे हम वेब पेजेस और वेबसाइट्स कहते हैं. द मेन पेज ऑफ वेबसाइट इज़ कॉल्ड होम पेज. वेबसाइट का जो मेन पेज होता है उसे हम होम पेज कहते हैं. देयर आर अनकाउंटेबल वेबसाइट्स ऑन द नेट. नेट पे आपको कई सारे वेबसाइट्स मिलेंगे. नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ में चिल्ड्रन वी विल स्टडी यूजेस ऑफ इंटरनेट. हम इंटरनेट के यूजेस को पढ़ेंगे. सबसे पहले है फर्स्ट, इंटरनेट हैज़ बिकम अ पार्ट ऑफ आवर एवरीडे लाइफ. जैसा कि आप जानते हैं कि नेट जो है वो हमारे लाइफ का डेली लाइफ का एक हिस्सा बन चुका है. फ्रॉम बीइंग यूज्ड इन डिफेंस पर्पसेस बाय द यूनाइटेड स्टेट्स मिलिट्री फॉर कम्युनिकेशन इनिशियली टू बीइंग यूज्ड वर्ल्ड वाइड फॉर हंड्रेड्स
of thousands of different purposes of our everyday life now. There are millions of applications in internet, and we are in fact as dependent on internet as we are on other utilities, things like electricity, water, etc. हम बिल्कुल नेट पर निर्भर हो चुके हैं. कोई भी वर्क हमें करना है, सर्च करना है, हेल्थ या स्टडी से रिलेटेड या न्यूज़ से रिलेटेड, तो हम नेट को ओपन करते हैं. देन दीज आर द मेजर यूजेस ऑफ इंटरनेट. ये जो है ये इम्पॉर्टेंट यूजेस हैं. फर्स्ट है ऑनलाइन शॉपिंग. आप नेट से, इंटरनेट कनेक्शन से आप ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं. सेकंड है नेट बैंकिंग. बैंक से रिलेटेड कोई भी चीज़ हो आप उससे ट्रांसफ़र कर सकते हैं इंफॉर्मेशन को. डिपॉजिट से रिलेटेड हो, विड्रॉवल से रिलेटेड हो, आप वो ट्रांजैक्शंस थ्रू नेट बैंकिंग कर सकते हैं. देन थर्ड है कम्युनिकेशन. आप एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर अगर कोई मैसेज सेंड करना चाहते हैं या कम्युनिकेट करना चाहते हैं कई जगहों पर, तो आप नेट का यूज़ कर सकते हैं. देन फोर्थ वन इज़ जॉब सर्च. जब आपको जॉब के लिए सर्च करना है, जैसे कि कोई जॉब है और उसकी वेबसाइट ओपन करनी है, वैकेंसीज देखनी है, तो आप नेट के थ्रू देख सकते हैं. देन वी हैव फिफ्थ इज़ हॉबीज़. आपकी हॉबीज़ कुछ भी है जो उस पर आप रिसर्च करना चाहते हैं, तो नेट के थ्रू आप सर्च कर सकते हैं. देन नेक्स्ट इज़ रिसर्च. रिसर्च में आप कई टॉपिक्स को से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आप नेट में सर्च कर सकते हैं. सेवेंथ इज़ स्टडिंग यानी पढ़ाई. आप इस समय ऑनलाइन वीडियो वॉच कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो इसी को कहते हैं स्टडीज़. या फिर आप बिना बुक्स के आप पढ़ाई करना चाहते हैं, तो नेट ओपन करें, वहाँ पे आपको स्टडी मटेरियल्स मिल जाएंगे और आप पढ़ सकते हैं. एट्थ पॉइंट इज़ फाइल डाउनलोडिंग एंड अपलोडिंग. आप कोई चीज़ डाउनलोड करना चाहते हैं अपने फ़ोन में, तो डाउनलोड कर सकते हैं थ्रू नेट. एंड अपलोड करना चाहते हैं कोई वीडियो या कोई भी फाइल, तो आप नेटवर्क के इंटरनेट कनेक्शन के थ्रू अपने मोबाइल के में अपलोड कर सकते हैं. नाइन्थ वन इज़ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग. आप ना कि ऑडियो कॉल्स कर सकते हैं, आप आजकल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी कर सकते हैं. एक साथ कई लोगों के से वीडियो कॉल पर बात कर सकते हैं. देन टेंथ इज़ ईमेल. ईमेल का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल, यानी कंप्यूटर के थ्रू मैसेजेस भेजना, तो उसे ही कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक मेल. एक मेल होता है जो टेक्स्ट मैसेज आप करते हैं, तो उसे जैसे आप लेटर्स लिखते थे, तो वो पुराने ज़माने में होता था. और ये जो है कंप्यूटर पे इंटरनेट के थ्रू आप मेल भेजते हैं, तो उसे हम इलेक्ट्रॉनिक मेल्स कहेंगे. नेक्स्ट है वेब ब्राउज़र. नाउ वेब ब्राउज़र इज़ व्हाट चिल्ड्रन? इट इज़ एन एप्लीकेशन दैट रन्स एज at users and facilitates to access many internet resources like email, search engine, train air reservation, examination results, net banking, online shopping, etc. वेब ब्राउज़र जो है ये एक ऐसा रिसोर्स है इंटरनेट का जिसके थ्रू आप ईमेल यानी इलेक्ट्रॉनिक मेल्स कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं किस चीज़ के लिए. आप ट्रेन टिकट्स को अगर आपको सर्च करना है, या आप ट्रेन के टाइमिंग्स और डेट्स के बारे में जानना चाहते हैं, अपने रिज़ल्ट्स के बारे में जानना चाहते हैं, बैंक से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन है, और ऑनलाइन शॉपिंग, ये सारी चीज़ें आप वेब ब्राउज़र्स के थ्रू कर सकते हैं. यूजिंग URL द करस्पॉन्डिंग वेबसाइट इज़ फाउंड. URL से आप वेबसाइट्स के लिंक्स फाउंड कर सकते हैं. Web browser operate using HTTP protocols. Browsers support text, audio, video, animations, etc. Features for displaying web pages. Various types of web browsers are Microsoft Internet Explorer, Netscape, Navigators, Mozilla Firefox, Safari, Opera, Lens, etc. With the help of web browser, a user can access search engines and access emails and use all the facilities of internet. इंटरनेट के थ्रू आप
वेब ब्राउज़र्स के थ्रू आप इंटरनेट पे ये सारे फैसिलिटीज़ को यूज़ कर सकते हैं. नाउ वी विल मूव ऑन टू FTP. FTP क्या है? फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल. इट इज़ अ स्टैंडर्ड नेटवर्क प्रोटोकॉल यूज टू एक्सचेंज एंड मैनिपुलेट फाइल्स ओवर द इंटरनेट. आप इंटरनेट पे कई फाइल्स को एक्सचेंज कर सकते हैं, उसका यूज़ कर सकते हैं. क्या यूज़ करके? फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल. FTP रिप्रेजेंट करता है नेटवर्क functionality that enables user to upload web pages, files like simple text files, images, multimedia files, etc. Now we will move on to transmission control protocol. TCP is a communication protocol for the internet. It defines the rule which computers must follow to communicate with each other over the internet. TCP एक ऐसा कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है इंटरनेट के लिए जो कि हमें कम्युनिकेशन करने के लिए यूज़ होता है. देन HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल. ये www पर ये यूज़ होता है प्रोटोकॉल और ये मैसेजेस ट्रांसफ़र करता है एंड transmitted, and what action web server and web browser should take in response to various commands. HTTP defines how much messages are transmitted and what action web servers and browsers should take in response to various commands. Then we have www. www का full form होता है वर्ल्ड वाइड वेब. इट इज़ कॉमनली नोन एज वेब. हम इसे जनरली किस नाम से बुलाते हैं? वेब से. www. इट इज़ अ वे ऑफ एक्सेसिंग इंफॉर्मेशन ओवर द मीडियम ऑफ द इंटरनेट. जब हम कोई इन्फॉर्मेशन या कोई डेटा एक दूसरे के थ्रू ट्रांसफ़र करते हैं, एक प्लेस से दूसरे प्लेस में मैसेजेस भेजते हैं या इन्फॉर्मेशन देते हैं, तो उसको हम किसके द्वारा भेजते हैं? www के द्वारा. एक ऐसा नेटवर्क है जिसके थ्रू हम वर्क करते हैं. इस www पर हमें कई सारे लिंक्स मिलते हैं जिसको यूज़ करके हम बहुत वर्क कर सकते हैं. जिस भी प्रोसेस पे हमें काम कोई वर्क हम कर रहे हैं, इस पे फाइल क्रिएट करना चाहते हैं, अपलोड करना चाहते हैं, डाउनलोड करना चाहते हैं, तो हम इसको यूज़ करके कोई भी एक्सेस कर सकते हैं इंफॉर्मेशन को. नाउ चिल्ड्रन, यू हैव टू डू द फॉलोइंग एक्सरसाइज इन योर कॉपी. फर्स्ट वी विल फिल इन द बुक एंड देन यू विल डू इट इन द कॉपी. रिमेनिंग चैप्टर आई विल एक्सप्लेन इन द नेक्स्ट वीडियो. एंड नाउ वी विल डू पेज नंबर 84. हम 84 पे जो एक्सरसाइज दिया गया है उसे पहले फिल कर लेंगे. सो ए, टिक एंड राइट द करेक्ट आंसर. हमें करेक्ट आंसर पे टिक लगाना है और फिलिंग द ब्लैंक्स में फिल करना है. फर्स्ट वन इज़ FTP स्टैंड्स फॉर डैश. FTP का फुल फॉर्म जैसे कि मैंने आपको बताया, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल. नेक्स्ट, फुल फॉर्म ऑफ www इज़ वर्ल्ड वाइड वेब. सी आंसर है, आपको यहाँ पे फिल कर लेना है, वर्ल्ड वाइड वेब. थर्ड का आंसर होगा द मेन पेज ऑफ अ डैश इज़ कॉल्ड द होम पेज. द मेन पेज ऑफ ए वेबसाइट. आपको यहाँ पे सी यानी वेबसाइट फिल करना है. फोर्थ, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ ईमेल? इट इज़ इलेक्ट्रॉनिक मेल. सो द आंसर विल बी सी, इलेक्ट्रॉनिक मेल. यू हैव टू फिल हियर इन द ब्लैंक. नेक्स्ट इज बी, फिलिंग द ब्लैंक्स यूजिंग द गिवन वर्ड्स. This is your help box and you have to choose the correct answer for the filling the blanks. First one is internet has become a part of our dash life, everyday life. It's given here, so you'll write here everyday. Second answer is using email we can send text, audio and video files to one person or a group of person. Third answer is the internet is a dash of millions of computers and computing devices. क्या है? collection of millions of computers, collection devices. Fourth one is domain names are specific names used in URLs to identify particular web page.
pages. Fifth answer is FTP stands for File Transfer Protocol. Sixth is WWW stands for World Wide Web. Seventh, chat is meant for live discussion using text and multimedia features. Eighth one is the internet is a massive body of networks as networking infrastructure. So these are the answers for B question, and this is tick the answer 1, 2, 3, 4. You have to write it in the copy, children. Okay, that's all for today. In the next video we will do the remaining chapter and I will explain you, and then I will give you these exercises to do in the next video. So you have to do your homework in neat and clean handwriting in your computer fair copy, exercise A and B of chapter 8, Internet and its application. Take care. Thank you.